Good morning, children. Today I will start a new chapter, Bill of Exchange. Children, before starting the chapter, I would like to tell some activities from which you will get an idea regarding this chapter. So, let's start. Children, when anything is being sold or purchased in cash, if it is paid in cash, the transaction ends. But if it is purchased or sold on credit basis, then the consumer gives a particular future date to pay for it. Now, this concept is related for promissory note or bill of exchange. Children, first I will explain the concept bill of exchange. After that, I will explain another topic, promissory note. Like children, in modern times, a very large number of business transactions are made on credit basis. In case of credit sale of goods, the purchaser usually promise to make payment after a certain period. In such a case, the seller would like to get a written undertaking from the buyer to get the payment after a fixed period. As such, the seller prepare a document in which he put in writing all the terms and conditions relating to sale of goods such as amount required to be paid, date of payment, place of payment and the like. The buyer put his signature on the document and it is known as bill of exchange. So let's start. Nowadays, these instruments of credit are called bill of exchange or promissory note. The bill of exchange contain an unconditional order to pay a certain amount of an agreed date, while the promissory note contain an unconditional promise to pay a certain sum of money on a certain date. In India, these instruments are governed by the Indian Negotiable Instrument Act 1881. So, children, according to Bill of Exchange, are the instrument of credit which facilitate the credit sales of goods. In India, these are known as hundi, which are written in Indian language, but in modern time it's called Bill of Exchange. Bill of Exchange, according to the Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to bearer of the instrument. The following features of a bill of exchange emerge out of this definition. So children, according this bill of exchange एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1881, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि जिसने भी हमसे सामान उधार क्रेडिट बेसिस में खरीदा है उसको एक पर्टिकुलर डेट पर हमें जो पैसे हैं वो रिटर्न करने हैं, कितने पैसे रिटर्न करने हैं, किस डेट को करने हैं और उसके लिए वो हमें एक्सेप्टेंस भी देता है. तो इसके फीचर्स जो हैं चलिए देखते हैं. अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटिन राइटिंग, कि जो भी हम इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हमने अगर सपोज हमने किसी को क्रेडिट में सामान बेचा है और हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. लेकिन इफ़ यू हैव एन रिटर्न एविडेंस, आपने उससे रिटर्न में एक कोई रिटर्न जो एविडेंस है वो लिखवाया है या कोई एक ऐसा बिल जो है वो आपने प्रिपेयर करवाया है, कोई ऐसा नोट प्रिपेयर करवाया है जिसमें उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है कि ओके आई विल पे द मनी ऑन द ड्यू डेट, तो वो अब क्या है कि अपनी बात से क्या नहीं हो सकता कि अब उसको डिले नहीं कर सकता और उसको आपकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आपकी तरफ से जो प्रेशर बनेगा जो या फिर जो आप क्लेम कर रहे हैं अपनी पेमेंट के लिए वो तभी कर पाएंगे कि अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में उसको बना करके दिया है. इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, यहाँ पर एक ऑर्डर पास हो रहा है कि आपको ये पेमेंट जो है वो करनी है. द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज़ अनकंडीशनल, लेकिन आपने उसके बदले में कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन जो है वो
नहीं अप्लाई की है। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। जिसने भी ये बिल बनाया है, मेकर मतलब जिसने बनाया है, ड्रॉ किया है, उसके उस बिल के ऊपर साइन होने चाहिए। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, कि जो पेमेंट है वो कब करनी है, ये भी वहाँ पर जो टाइमिंग है या जो डेट है वो वहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, कि कौन हमारी पेमेंट जो है इन फ्यूचर करने वाला है ड्यू डेट में, उसके बारे में भी डिक्टेट यहाँ पर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। और लास्ट में हमें उसमें अपनी जो है फर्म की या अपनी कंपनी की जो स्टैम्प है वो भी वहाँ पर अप्लाई करनी। सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा लेटर है या एक ऐसा बिल है जिसमें लिखने वाला किसी जो जिसने हमसे सामान खरीदा है, ऐसे किसी आदमी को ऑर्डर दे रहा है कि उसे हमारी जो पेमेंट है वो पर्टिकुलर डेट में करनी है। अगर डायरेक्ट हमारी जो बात है वो उससे हो रही है तो वो हमारी पेमेंट को करेगा, लेकिन अगर वो किसी और को इंश्योरेंस में ले रहा है या किसी और को बिहाफ में ले रहा है तो हम कहेंगे कि ठीक है, आप हमारी पेमेंट करेंगे, या फिर आपके साथ जो अनदर पर्सन है जिसको आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो हमारी पेमेंट को एक पर्टिकुलर डेट तक पेमेंट कर देगा। इसके साथ यहाँ पर जो फीचर्स बताए गए, इसका मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा हमारा रिटर्न में ही होना चाहिए, ये ऑरल नहीं हो सकता। इसमें जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट है ये भी क्लियर होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद है कि इसमें आप कोई भी फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि सपोज कोई आपकी पेमेंट पे नहीं कर पा रहा है तो विच टाइप ऑफ एक्शन यू विल बी मेड, तो आप किस तरह का एक्शन वहां पर लेंगे, तो ऐसा कोई कंडीशन इस लेटर में मेंशन नहीं की जाएगी। इसके बाद है कि इसमें जिसने भी इस लेटर को प्रिपेयर किया है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, कितनी अमाउंट यहाँ पर है वो किस डेट में पेमेंट होगी ये सब मेंशन होगा। इसके साथ है कि वहाँ पर जिसने ये लेटर प्रिपेयर किया है और वो बता रहा है कि ये एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, the amount mentioned in the bill of exchange is payable either on demand और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि आप जो पेमेंट करेंगे वो फिक्स टाइम पर कर देंगे, या उसके हो सकता है कि कभी वो ऑन टाइम पे पेमेंट ना हो तो क्या आप उसके लिए कुछ और टाइम को एक्सटेंड करना चाहेंगे। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कि जो भी ये सब रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है किसी बिल में, किसी लेटर में, तो वहाँ पर फॉर्म की जो स्टैम्प है वो भी मार्क होनी चाहिए। A bill of exchange is generally drawn by the creditor upon his debtor। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अपने जो क्रेडिटर है उसके लिए लिखा जाता है, अपने डेप्टर के लिए, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमें पेमेंट दे रहा है इट्स कॉल्ड डेप्टर, और जिसे हम पेमेंट करते हैं इट्स कॉल्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो सामान एक्सचेंज हो रहा है, जो सामान खरीद रहा है हमसे उधार में, उसके लिए हम इस लेटर को बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं। इट हैज़ बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई डेप्टर और समवन ऑन हिज बिहाफ। तो जिसने जो ये लेटर है उसको ड्रॉई डेप्टर जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट टिल एज एक्सेप्टेंस इज मेड। अगर वो इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके एक्सेप्टेंस अगर कोई और दे रहा है तो इसका मतलब वो उसके बिहाफ में उसकी पेमेंट को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अमित सोल्ड गुड टू रोहित ऑन क्रेडिट। अमित ने सामान बेचा रोहित को 10,000 का फॉर 3 मंथ, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। टू इंश्योर पेमेंट ऑन ड्यू डेट अमित ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए कि पेमेंट जो है वो 3 महीने के बाद होगी, और इसके लिए अमित की तरफ से एक जो बिल है वो प्रिपेयर किया गया। बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय रोहित इट विल बी कॉल्ड अ ड्राफ्ट। जब तक ये रोहित को एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक ये एक ड्राफ्ट ही रहेगा। इट विल बिकम अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली व्हेन रोहित राइट द वर्ड एक्सेप्टेड। ये सिर्फ एक एक्सेप्टेड लेटर तभी बन पाएगा जब रोहित इसको रिसीव करेगा और इस पर रिटर्न में लिखेगा कि ओके आई हैव एक्सेप्टेड दिस बिल, कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है बिल, और जो भी इसमें टर्म्स और कंडीशंस हैं उनके लिए मैं अग्री हूँ। ऑन इट एंड अपेंड
हिज सिग्नेचर देयर टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस। उसके बाद वो उस लेटर को वापस अमित के पास पहुंचाएगा अपनी एक्सेप्टेंस दे करके कि ओके ये लेटर मैं रिसीव कर चुका हूँ और दीज टर्म्स एंड कंडीशन आई विल फॉलो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट, कि जो भी ड्यू डेट में फ्यूचर में मुझे टर्म्स और कंडीशन आपकी तरफ से दी गई है उन सबको मैं फॉलो करूंगा और अपने सिग्नेचर के साथ ये इसको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड। नेक्स्ट, parties to a bill of exchange. There are three parties to a bill of exchange. First, drawer, second, drawee, and third is payee. Drawer is the maker of bill of exchange. Drawee is the person upon whom the bill of exchange is drawn. Payee is the person to whom the payment is to be made. So first, again I will explain the meaning of drawer. Drawer, he is the seller or creditor entitled to receive money from someone. He writes or draw the bill and is known as drawer. The bill of exchange is signed by the drawer of the bill. Next, drawee, also called acceptor. Drawee, he is the purchaser or the debtor on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill. He accepts to pay the amount by writing the word accepted. तो जब भी ड्रॉ यहाँ पर जो परचेज उसने सामान किया है उसके लिए जब उसको एक बिल मिलेगा तो वहाँ पर उसको अपनी एक्सेप्टेंस शो करनी होगी और इसी को हम ड्रॉई कहेंगे। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ओके मैंने जो सामान खरीदा है उसके बदले में मैं ये पेमेंट आपको ड्यूरिंग जो पीरियड टाइम है उस पर मैं पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ से जो भी उसमें मेंशंस है टर्म्स और कंडीशन उनके अकॉर्डिंग मैं पेमेंट करूंगा। नेक्स्ट, पेई, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। द ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी में बी द पेई ऑफ द बिल। द ड्रॉर विल बी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जो यहाँ पर सामान सपोज ए ने बी को सामान बेचा तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टी काम करेगी, एक ड्रॉर और दूसरा ड्रॉई, कि ड्रॉर जिसने बिल को बनाया और ड्रॉई जिसने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उसको वापस ड्रॉर के पास सेंड कर दिया कि ओके आई विल एग्री फॉर योर टर्म्स और कंडीशन एंड आई विल पे द मनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक जो है थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाता है कि सपोज एक्स ने वाई को सामान बेचा और एक्स ने वाई को जब सामान बेचा तो यहाँ पर एक्स ने वाई के लिए एक जो है लेटर प्रिपेयर किया। सपोज यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि एक्स, सपोज ये एक्स है, एक्स ने वाई को सामान जो है वो सेल किया। सेल करने के बाद एक्स ने एक लेटर ड्रॉ किया, ड्रॉ मतलब मेकर, ये बनाने वाला है, इसने एक लेटर प्रिपेयर किया और उसको वाई के पास सेंड कर दिया। अब मे भी हो सकता है कि जो ऑनर है कंपनी का वो वाई नहीं है और यहाँ पर जेड जो है वो ऑनर है। ये सिर्फ क्या है, कंपनी का एक एम्प्लॉय है या कोई मैनेजर है या कोई एक सेकेंडरी पर्सन है जो एज अ मीडिएटर फर्म के जितने भी यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग की जो कंडीशंस है इनको फॉलो कर रहा है। तो सपोज एक्स ने एक लेटर बनाया और उसके बाद ये वाई के पास पहुँचा। वाई ने अगर इसकी एक्सेप्टेंस दी किसके बिहाफ में, जेड के बिहाफ में अगर वाई ने एक्सेप्टेंस दी तो ओके, तो पेमेंट जेड की तरफ से पहले वाई के पास होगा और फिर वाई उसको ट्रांसफर करके एक्स के पास सेंड करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर जेड नहीं है, टू ही पर्सन है, तो टू पर्सन है तो फर्स्ट को हम कहेंगे ड्रॉर और सेकंड बन जाएगा ड्रॉई। केवल टू पार्टीज ही इन्वॉल्व होंगी। लेकिन अगर तीन लोग हैं तो ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। इसका मतलब है कि ड्रॉर इसने बिल को प्रिपेयर किया, मेक किया, प्रिपेयर बनाया, उसके बाद इसने ड्रॉई, इसने एक्सेप्टेंस दी और फाइनल जो पेमेंट है वो इसको करनी है तो ये यहाँ पर पेई रहेगा। सपोज ये ऑनर है तो यहाँ पर ऑनर ने अथॉरिटी दी हुई है अपने किसी एम्प्लॉय को कि ओके जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मेरे जितने भी बिल्स होंगे उनको आप एक्सेप्ट करना और रिटर्न कर देना एक्स को। तो यहाँ पर एक्स ने जो लेटर बनाया उसके बाद इसने इसको वाई को सेंड किया, वाई ने इसकी इंफॉर्मेशन जेड के पास पहुंचाई कि सर एक एक्स कंपनी से हमारे पास एक लेटर रिसीव हुआ है और जो हमने यहाँ पर सामान खरीदा था उसकी पेमेंट के लिए। तो जेड यहाँ से ऑर्डर देगा कि ओके जब बिल वो रिसीव होगा तो यू विल बी एक्सेप्टेड, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसको रिटर्न कर देना।
आफ्टर दैट आई विल पे द मनी, और मैं उसकी जो पेमेंट है वो ड्यू डेट में हम पेमेंट उसकी कर देंगे। तो अगर इस तरह से ट्रांजेक्शन्स होंगी देन विल यूज थ्री पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। बट व्हेन ओनली टू पर्सन विल बी ट्रांजेक्ट, अगर दो ही पर्सन जो है मिलकर के ट्रांजेक्शन्स आपस में करेंगे तो वहां पर केवल दो ही लोगों का एनरोलमेंट होगा, एक ड्रॉर और दूसरा ड्रॉई। तो यही ड्रॉई जो है वो ही पे ही बन जाएगा, क्योंकि ये किसी के बिहाफ में पेमेंट नहीं कर रहा है, ये होल सोल है, ये सोल प्रोप्राइटर है, या फिर ये ऑनर है जिसने एक्स ने वाई को सामान भेजा और वाई ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न में इसको लेटर भेज दिया कि ओके मैं तुम्हारी पेमेंट जो है वो ड्यू डेट में कर दूंगा। नॉर्मली द ड्रॉर एंड द पेई इज द सेम पर्सन। तो देखिए यहाँ पर जो ड्रॉर है और जो पेई है वो एक ही पर्सन है। सिमिलरली द ड्रॉई एंड द एक्सेप्टर इज नॉर्मली द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ममता सोल्ड गुड वर्थ 10,000 टू ज्योति। ममता ने ज्योति को 10,000 का सामान बेचा एंड ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन हर, और उसके लिए एक जो बिल है वो प्रिपेयर किया, किसने? ममता ने। हर फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ, और उस लेटर में लिखा कि 3 मंथ के बाद मेरी जो पेमेंट है वो आपकी तरफ से की जाएगी। हेयर ममता इज द ड्रॉर। क्यों है ममता ड्रॉर? क्योंकि ममता ने उस बिल को प्रिपेयर किया है, ऑफ द बिल। एंड ज्योति इज द हेयर ममता इज द ड्रॉर। क्यों है ममता ड्रॉर? क्योंकि ममता ने उस बिल को प्रिपेयर किया है, ऑफ द बिल। एंड ज्योति इज द ड्रॉई। ड्रॉई ज्योति क्या है? ड्रॉई भी है और पेई भी है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के बीच में ही ट्रांजेक्शन्स हो रही है। ममता ने ज्योति को सामान बेचा, ममता इज अ ड्रॉर एंड ज्योति इज अ एक्सेप्टर और ड्रॉई और कैन बी पेई। If the bill is retained by Mamta for 3 months and the amount of 10,000 is received by her on the due date, then Mamta will be the pay। कि 3 महीने के बाद जब पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पर ममता जो है वो पेई बन जाएगी। इफ ममता गिव्स अवे दिस बिल टू हर क्रेडिटर रुचि। अब यहाँ पर ममता अगर जो है वो अपने बिल को किसी थर्ड पर्सन को कैरी ऑन कर देती है, रुचि को, देन रुचि विल बी द पेई। तो रुचि उसकी पेमेंट को क्या करेगी? क्लियर करेगी। इफ ममता गेट दिस बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक देन द बैंकर विल बिकम द पेई। और अगर उसके ममता के बिना बैंक जो है उस बिल को कैश करा लेता है तो वहां पर बैंक जो है वो पेई बन जाएगा। इन द सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग दिस एग्जाम्पल, ममता ने ज्योति को 10,000 का सामान उधार बेचा। उसके बाद ममता ने ज्योति के लिए 3 मंथ के लिए एक जो लेटर है वो प्रिपेयर किया। यहाँ पर जो ममता है वो बिल करता है क्योंकि उसने बिल को प्रिपेयर किया है। ज्योति यहाँ पर एक्सेप्टर है, पेई है और कह रही है कि ठीक है आई विल पे योर मनी। बट इफ ममता 3 महीने के लिए जो लेटर है वो अपने पास रखती है और पैसा जो है रिसीव कर लेती है, तो ममता यहाँ पर क्या बन जाएगी? ड्रॉई बन जाएगी। जो उसका पैसा है भुगतान पाने वाली व्यक्ति उसको हम कहेंगे कि उसको यहाँ पर ममता ने सामान बेचा था उसको ज्योति को, और ज्योति ने एक्सेप्टेंस दी और ज्योति ने उसकी पेमेंट को करने के लिए प्रॉमिस कर दिया, तो यहाँ पर ममता जो है वो ड्रॉर बन जाएगी। लेकिन यदि ममता इस लेटर को अपनी किसी और जो है, एक यहाँ पर एक और मेंशन है रुचि, अगर वो अपने लेटर को किसी रुचि नाम की लेडी को ट्रांसफर कर देती है और रुचि पेमेंट पाने वाली बन जाती है, तो ममता इस लेटर को बैंक से भुनवा लेती है, मतलब कैश करवा लेती है, तो बैंक भुगतान पाने वाला व्यक्ति माना जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर पहले 2 लोगों को देखा, फिर उसके बाद एक और जो है पर्सन उसको एनरोल किया गया कि ममता ने यहाँ पर ज्योति को सामान बेचा, उसके लिए एक लेटर प्रिपेयर किया, 3 मंथ की कंडीशन रखी और ममता का जो लेटर है वो ज्योति ने एक्सेप्ट किया और कह रही है कि ओके मैं पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ममता है वो ड्रॉर है और जो ज्योति है वो ड्रॉई है। लेकिन अगर इसके बाद ममता
पास हिज हर लेटर, अगर ममता, सपोज ममता को भी किसी को पेमेंट करनी है, तो ममता ने अपना जो एक ये बिल है ये किसी और को पास कर दिया, लाइक रुचि को पास कर दिया, तो अब जो पेमेंट यहाँ पर ज्योति की तरफ से होनी है वो ममता को नहीं, वो रुचि को पेमेंट यहाँ पर होगी। और इसके बाद अगर इफ ममता गेट दिस बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, लेकिन अगर रुचि के लेने से पहले ही जो ममता है वो इस बिल को कैश करा लेती है, तो बैंक यहाँ से, जो बैंक है वो यहाँ पर पेई बन जाएगा, कि किसी को भी पेमेंट मिलने से पहले जो पेमेंट है वो बैंक की तरफ से पेमेंट की जाएगी। ऑन द अबो मेंशन बिल ऑफ एक्सचेंज ममता इज द ड्रॉर एंड ज्योति इज द ड्रॉई, कि ममता जो है वो ड्रॉर है और जो यहाँ पर ज्योति है वो ड्रॉई है। सिंस ज्योति हैज एक्सेप्टेड द बिल शी इज द एक्सेप्टर। सपोज इन प्लेस ऑफ ज्योति द बिल इज एक्सेप्टेड बाय अशोक, देन अशोक विल बिकम द एक्सेप्टर, कि अगर एक की जगह कोई दूसरा रिप्लेस होता चला जाएगा तो वो वहां पर एक्सेप्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक जो यहाँ पर फॉर्मेट है शोइंग स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इस तरह से यहाँ पर एक बिल जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा ममता की तरफ से। ममता ₹10,000 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, कि 3 महीने के बाद मुझे ये पेमेंट मुझे रिसीव होनी चाहिए। जिस दिन ये लेटर बना उसकी डेट, स्टैंप यहाँ पर लग जाएगी, मार्क हो जाएगी, एक्सेप्टेड साइन, कि जिसको ये एक्सेप्ट होगा, ज्योति को ये एक्सेप्ट हो गया तो ज्योति के यहाँ पर साइन आ जाएंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा, साइन यहाँ पर ममता के साइन होंगे और उसका यहाँ पर एड्रेस होगा टू ज्योति। और अगर तो ये ज्योति की तरफ से फिर क्या होगा, किसके लिए लेटर, ज्योति के लिए। So children, today I have explained the meaning of bill of exchange. Meaning of bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of the instrument. Features are: it should be in written only, it must contain an order to make payment, the order must be unconditional, bill of exchange must be definite, fixed one, payment date of payment must be fixed one, signed by the maker of the bill, signed by the acceptor, etc. Parties to a bill of exchange are involved. First, drawer, he is the seller or creditor entitled to receive money from someone. Drawee or acceptor are same, he is the purchaser or the debtor on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill. Payee, the person to whom the payment is to be made is called payee. So children, I hope these topics will be clear. So take care. Goodbye.